کمانڈو، ایک پاکستانی مجاہد کا سچا داستان جس کو اے حمید نے قلم سے محفوظ کیا۔ قسط نمبر 4 کے لیے تیار ہو جائے۔ کھانے کا وقت ہو رہا تھا، میں نیچے آ کر ڈرائیو روم میں بیٹھ گیا۔ ایک سفید کپڑوں والا آدمی کاؤنٹر پر کہنی ٹکائے کھڑا تھا اور ساڑی پوش کاؤنٹر گرل سے مسکرا کر باتیں کر رہا تھا۔ اس سفید پوش کے بالوں میں ہلکی سی سفیدی جھلک رہی تھی۔ مجھے شکل ہی سے وہ بے حد چالاک اور زیرک آدمی لگا، ہو سکتا ہے یہ بھارتی انٹیلیجنس کا آدمی ہو۔ میرا دل ایک لمحے کے لیے شدت سے دھڑکا اور پھر میں خاموش سے اخبار کھول کر پڑھنے لگا۔ انگریزی کا اخبار تھا۔ میں فلموں کے اشتہار دیکھنے لگا۔ چاونی کے کرشمہ سنیما میں انڈین فلم مورتی لگی ہوئی تھی۔ بیرے نے مینو رکھ دیا۔ کھانے کے بعد میں ڈرائنگ روم میں سے نکل کر کاؤنٹر کے قریب سے گزرتے ہوئے جان بوجھ کر رک گیا اور کاؤنٹر ساڑی پوش لڑکی سے کہا، ایک فون کر سکتا ہوں؟ جی کیوں نہیں پلیز۔ انگریزی اخبار سے میں نے ایک فون نمبر یاد کر لیا تھا۔ یہ کسی فرنیچر کی دکان کا نمبر تھا۔ میں نے اس کا ایک ہندسہ بدل کر نمبر گھمائے، ریسیور کان کے ساتھ لگایا۔ دوسری طرف سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ میں نے قدری بلند آواز میں کہا، ہیلو، دیکھیے میں صبح آپ کی دکان پر آیا تھا، میرا نام راکیش شرما ہے۔ جی ہاں آپ نے پہچان لیا۔ میں نے صبح ڈائمنڈ کی ایک انگوٹھی پسند کی تھی۔ جی ہاں وہی جس کی قیمت آپ نے 20,000 روپے بتائی تھی۔ کیا کہا بک گئی، ویری بیڈ خبر، خیر کوئی بات نہیں۔ آپ کے پاس میرا نئی دلی کا فون نمبر موجود ہے، اگر اسی قسم کی دوسری انگوٹھی آپ کے پاس آئے تو مجھے فون کر دیجیے گا۔ جی ہاں دھنیہ واد، نو پرابلم۔ میں نے ریسیور رکھ دیا۔ کاؤنٹر گرل نے مسکراتے ہوئے کہا، سر آپ نے کافی نہیں پی، ہمارے ہوٹل کا کافی تو ڈلہوزی تک مشہور ہے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ میری فون پر گفتگو کا اس پر خاص خاطرخواہ اثر ہوا ہے، ضرور پیوں گا، مگر اس وقت میں ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں، میں نے کہا۔ کاؤنٹر گرل سے رہا نہیں کیا تو بولی، شمع کیجیے گا سر، پٹھان کوٹ میں اصلی ڈائمنڈ کی انگوٹھیاں بہت کم ملتی ہے۔ آپ نے لالا جوہری فرشاد جیولرز کو فون کیا تھا نا؟ جی ہاں لالا جی کو ہی فون کیا تھا، مگر میں نے صبح جو انگوٹھی دیکھی تھی اس کا ڈائمنڈ مجھے اصلی لگا تھا۔ سر بڑا گھپلہ ہوتا ہے اس بزنس میں بھی، آپ اتنی مہنگی انگوٹھی اپنی پتنی کے لیے خرید رہے ہیں، شمع کیجیے گا مجھے ایسا پرشن کرنے کا ادھیکار تو نہیں ہے۔ میں نے ہنس کر کہا، کوئی بات نہیں، مگر میرا تو بھی بیان نہیں ہوا۔ وہ بھی ہنس پڑی، آئی ایم سوری، نو پرابلم، اوکے، تھینک یو فار دی کال، اینی ٹائم سر، کاؤنٹر گرل نے مسکراتے ہوئے کہا اور میں ہوٹل کی لابی سے نکل کر باہر بازار میں آ گیا۔ میری چھوٹی کال سے اس لڑکی پر خاصا اثر پڑا تھا اور یہی میں چاہتا تھا۔ اس ڈرامے سے میرا مقصد محض اتنا تھا کہ اس کاؤنٹر گرل سے کسی طرح یہ معلوم کرو کہ اس کے پاس جو سفید پوش شخص کھڑا تھا وہ کون ہے۔ بازار میں ٹریفک کا رش تھا۔ میں باغ میں آ گیا، کچھ دیر وہاں اٹل کر آئندہ کا پروگرام بناتا رہا۔ باغ کے دروازے پر ایک پھول بیچنے والا بیٹھا تھا۔ میں نے اس سے رینتی گندا کے پھولوں کا ایک دستہ خرید کر کاغذ میں لپیٹا اور واپس ہوٹل کی طرف آ گیا۔ کاؤنٹر پر میں نے گلدستہ کاؤنٹر گرل کی طرف بڑھا کر کہا، مجھے جس مہاشا جی سے ملنا تھا وہ تو نہیں ملے گی، مگر رجنی گندا کے پھول مل گئے، انہیں سوکار کرے۔ مائما یہ آپ میرے لیے لائے ہیں، ہاؤ سویٹ، تھینک یو شرما جی، تھینک یو۔ میں نے پھولوں کا دستہ لڑکی کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے مسکرا کر کہا، آپ نے مجھے اپنا شبھ نام تو بتایا ہی نہیں دیوی جی۔ لڑکی شرما گئی اور بولی، اروشی، میرا نام اروشی بھنڈاری ہے۔ سندر نام ہے، آکاش کی افساروں کے ایسے سندر نام ہوتے ہیں۔ کاؤنٹر گرل اروشی اپنی تعارف پر بہت خوش ہوئی۔ میری جھوٹی عمارت بھی اس پر کارگر ثابت ہوئی تھی۔ میں بے نیازی سے اوپر اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ کمرے میں آ کر میں لیٹ گیا۔ میں کام کر رہا تھا کہ چاونی میں فوجی تنصیبات اور خاص طور پر بھاری توپ کے بارے میں کس طرح معلومات حاصل کی جائے۔ ایک ہی طریقہ میرے ذہن میں تھا کہ کسی طرح سے کسی ایسے آدمی سے دوستی پیدا کی جائے جو چاونی میں سویلین کلرک وغیرہ ہو۔ میں خود چاونی کے علاقے میں نہیں جانا چاہتا۔ اس کی وجہ مجاہد فورس میں میری ابتدائی کمانڈو ٹریننگ کا پہلا اصول تھا۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ جس ٹارگٹ کو تباہ کرنا ہو اس ٹارگٹ کے علاقے میں دن کے وقت کبھی نہ جاؤ۔ وہاں سے متعلقہ لوگوں کو اپنا چہرہ ہرگز مت دکھاؤ، کیونکہ کوئی پتہ نہیں تمہیں اس شکل میں کسی شخص کا بیس بدل کر وہاں جانا پڑ جائے۔ اگر وہاں تمہاری چہرہ شناسی ہو چکی ہوگی تو تم پہچان لیے جاؤ گے۔ چنانچہ میں نے ابھی تک پٹھان کوٹ چاونی کا رخ نہیں کیا تھا۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ میں پاکستانی جاسوس تھا اور چاونی کے علاقے میں جگہ جگہ ملٹری انٹیلیجنس کے آدمی پھر رہے تھے۔
जब से मशरक़ी पाकिस्तान में भारतीय तखरीबकारों ने गड़बड़ शुरू की थी या भी हंगामी किस्म की सूरत हाल थी, मिलिट्री इंटेलिजेंस की नफरी में इजाफा हो गया था। चौनी जाने वाली सड़क पर मुझे कई मुश्किल शक्लें नजर आई थी। मैं जानबूझकर इधर नहीं जाना चाहता। पठानकोट शहर में छुपे छुपे पर फौजी जासूस आम कपड़ों में रेलवे स्टेशन, बस स्टैंडों और दरमियानी दर्जे के होटलों के गिर चक्कर लगाते, इसलिए मुझे खतरा था कि जो सफेद पोश महाशा काउंटर गर्ल अरूशी के साथ बातें कर रहा था वो ज़रूर मिलिट्री इंटेलिजेंस का आदमी होगा। चुनांचे मुझे पठानकोट में रहकर अपने मिशन को पाए तकमील तक पहुंचाना था, इसलिए मैं हर तरह से बाखबर और मिलिट्री इंटेलिजेंस की नज़रों से बचकर रहना चाहता था। सफ़ेद पोश महाशय जी के बारे में मुझे अरूशी कुछ बता सकती थी और इससे मैंने अपना इतना काम निकालने जितनी दोस्ती पैदा कर ली थी। दफातन किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मैंने चुन कर दरवाजे की तरफ देखा। मुझे दो बातों का हर वक्त धड़का लगा रहता था। एक ये कि कहीं भारतीय इंटेलिजेंस का कोई आदमी मुझे गिरफ्तार करने न आ जाए, और दूसरा ये कि कहीं अमृतसर का स्मगलर क्रोंडिया मेरी तलाश में इधर न आ निकले। बाहर से होटल की वेटर की आवाज़ आई, सर मैं होटल बॉय हो हीटर लाया हूँ। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। होटल बॉय अंदर आया तो इसके हाथ में बिजली का बिल राडो वाला हीटर था। सर मैडम ने कहा है आपके कमरे में लगा दूँ। होटल बॉय ने हीटर पलंग के करीब लगा दिया। डाइटिंग रूम में शाम के बाद मैंने काफ़ी मंगवाई तो काउंटर गर्ल अरूशी की कॉफ़ी पीने की दावत दी। वो बखुशी मेरी मेज़ पर आ गई। मैंने इस किस्म की बातें शुरू कर दी जिनसे जाहिर हो कि मैं किसी आइडल लड़की की तलाश में हूँ और मैं शादी के बाद लंदन में जाकर अपना दर खोलना चाहता हूँ। होशियारी सी बातें करते हुए मैंने अरूशी की बालों में उंगली की कुछ इस तरह तारीफ की और कालिदास की संस्कृत की नज़मों के कुछ इस दिलनशीन अंदाज में हवाले दिए कि वो मेरे गुरमीदा हो गई। तब मैंने इससे पूछा कि वो महाशा जी कौन थे जिससे वो हंस हंस कर बातें कर रही थी। इसने हल्का सा कहकिया लगा कर बताया, इस महाशय का नाम तिलकराज वर्मा है और पठानकोट में कांग्रेसी कमेटी की सेक्रेटरी है। अरूशी ने ये भी बताया और इसके मामा जी के पुराने मिलने वाले हैं। मैं मुतमईन हो गया कि वो शख्स इंटेलिजेंस का आदमी नहीं था। अब मुझे अरूशी से कोई दिलचस्पी नहीं थी और मैं अपने मंसूबे के बारे में गौर करने लगा था। अचानक इस लड़की ने ऐसी बात कही जिस पर मेरे कान खड़े हो गए। वो अपनी मामा जी के बारे में बात करते हुए बोली, मेरे मामा का बड़ा बेटे केवल कृष्ण फौज में मेजर है, आजकल डलहौजी में छुट्टी पर गया हुआ है। मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं। वह एक ईसाई लड़की को साथ ले गया है। हमारी भारतीय संस्कृति में ये बात बुरी समझी जाती है ना। मैंने कुछ सोचते हुए कहा, क्यों नहीं, ये हमारी धर्म संस्कृति के भी खिलाफ है। मेरा ज़हन तेजी से एक मंसूबे पर गौर कर रहा था। ये बड़ा ख़तरनाक मंसूबा था, मगर इस पर अमल करते हुए मुझे अपनी मुहिम में 100% कामयाबी का यकीन था। अरूशी अपने मामा जी के गुमराह बेटे मेजर केवल कृष्ण के खिलाफ बातें किए जा रही थी। इसकी बातों से मैंने मालूम किया कि मेजर कृष्ण जालिंदर छावनी में तैनात था। फिर वहाँ से इसकी बदली पठानकोट छावनी में कर दी गई। इसने बीमारी का बहाना बनाकर वो 2 माह की छुट्टी ले ली और लिख कर दे दिया कि वो छुट्टियाँ डलहौजी के सेहत अफजा मुकाम पर गुजारने के बाद पठानकोट छावनी में अपनी नई ड्यूटी संभालेगा। वो अभी तक पठानकोट छावनी नहीं गया था। मैंने गुफ्तगू के दौरान बड़े तरीके से डलहौजी में इस होटल का पता मालूम कर लिया जिसमें मेजर कृष्ण एक ईसाई लड़के के साथ छुट्टियाँ गुजार रहा था। मुझे ये भी मालूम हुआ कि मेजर कृष्ण की अभी 1 माह की छुट्टी बाकी है। मेरे ज़हन में मंसूबा मुकम्मल हो चुका था। ये एक ऐसा ख़तरनाक मंसूबा था कि जिसमें एक कदम पर रासपाश होने और मेरी मौत का इम्कान था, लेकिन मैंने ये दाव लगाने का फैसला कर लिया था। रात को बिस्तर पर लेटे लेटे मैंने इस मंसूबे की सारी कड़ियाँ एक एक करके मरबूत कर ली और दूसरे रोज़ डलहौजी की तरफ रवाना हो गया। अरूशी को मैंने कहा कि मुझे एक ज़रूरी कारोबारी काम की वजह से अमृतसर जाना पड़ेगा, परसों तक वापस आ जाऊंगा। वो भारतीय फिल्मों की हीरोइन की तरह उदास आंखों से मुझे देखने लगे। खुदा जाने वो अपनी ज़हन में क्या मंसूबा तरतीब दे रही थी, मगर मुझे मेरा मंसूबा कुशा डलहौजी की तरफ लिए जा रहा था। मैं इससे पहले कभी डलहौजी नहीं किया। बस ने मुझे डलहौजी पहुंचा दिया। डलहौजी की पहाड़ों पर बर्फ गिरी हुई थी। ये सेहत अफजा मुकाम वीरान सा था। ये माहौल मेरे मंसूबे की तालीम के लिए बेहद मौजूद था। बस अड्डे के पास ही एक होटल था। मैंने इस होटल में एक कमरा ले लिया और चाय का 1 कप पीने के बाद गर्म कपड़े पहनकर बाजार में निकल आया और इस होटल का पता लगा लिया जहाँ मेजर कृष्ण मुकीम था। होटल से ब्रीफकेस उठाया और मेजर कृष्ण वाले होटल बेलदेव में मुंतकिल हो गया। कमरा किराए पर लिया। मेजर कृष्ण के कमरे का नंबर 5 था, जबकि मुझे 11 नंबर मिला था। दोनों कमरे दूसरी मंजिल पर थे। होटल अंदर से सारे का सारा सेंट्रली हेडेड था और काफ़ी हद तक जदीद साजो सामान से मज़ीन था।
दोपहर 2 बजे मैं खाने के बाद अपने कमरे में लौटा। बाज़ अहम उमूर पर गौर कर रहा था क्योंकि मेरे मंसूबे की बाज़ कड़ियाँ अभी तक नामुकम्मल थी। इनकी तकमील का तकाजा था कि मैं मंसूबे के गर्दाब में कूद जाऊँ। इस तरह वो कड़ियाँ खुद ब खुद आपस में मिल जाती। सपीर की चाय पीकर मैं 2-3 बार मेजर कृष्ण के कमरे के सामने गुजरा। इसका दरवाज़ा बंद था। मैं नीचे लॉबी में चला गया और सोफे पर बैठकर हिंदी का अखबार पढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद एक खुशपोश जोड़ा सीढ़ियाँ उतरकर काउंटर की तरफ आया। काउंटर पर जो आदमी खड़ा था उसने मुस्कुराकर इनका खैर मुकद्दम किया। गुड इवनिंग मेजर, आज शायद रात की बर्फ गिरेगी। मैंने गोश चश्म से इस जोड़े का जायजा लिया। लड़के का रंग सानुला था, शक्ल व सूरत ही से ईसाई लगती थी। इसका साथी मेरे कद काट का एक खुशशक्ल नौजवान था। इसने मुस्कुराते हुए चाबी काउंटरमैन की तरफ बढ़ा दी और बोला, हम सुनो पॉइंट तक चक्कर लगाने चाहते हैं आज रात तक खाने में। काउंटरमैन हंसकर कहा, मेजर साहब डोंट वरी, हमने आपको सूप के लिए खास तौर पर पठानकोट से टर्की मीट मंगवाया है। एंजॉय योर सेल्फ। थैंक यू। ये खुशशक्ल और खुशपोश जोड़ा होटल से चला गया तो मैं भी अखबार की एक तरफ रखकर उठा और काउंटर में से एक फ़ोन कॉल के बारे में बातें करने लगा। मैंने उसे बताया कि दिल्ली से मेरी एक कॉल आने वाली है। फिर मैंने थोड़ी देर बाद पता चलाया कि ये जो खुशशक्ल नौजवान एक लड़की के साथ अभी बाहर गया है। इसका नाम मेजर कृष्ण है और अपनी ईसाई बीवी के साथ हनीमून मनाने आया हुआ है। मेजर कृष्ण ने यहाँ झूठ बोला था और ईसाई लड़कियों को अपनी बीवी जाहिर किया था, जबकि मुझे डलहौजी वाली अरूशी ने बताया था कि मेजर कृष्ण अपनी एक दोस्त लड़की को लेकर डलहौजी 2 माह की छुट्टियां गुजारने गया हुआ है। मैंने एक सूची समझी स्कीम के तहत होटल के बार रूम में जाकर मशरूब की एक कीमती बोतल खरीदी और उसे लिफाफे में लपेटकर वही खिड़की के पास बैठकर एक फैशन मैगजीन देखने लगा। खिड़की पर गिरा हुआ सफेद बारी पर्दा दरमियान से हटा हुआ था और बाहर का फिजाई माहौल दिखाई दे रहा था। ये एक छोटी सी पहाड़ी सड़क थी जो होटल की लॉबी के आगे से गुजरकर और पहाड़ी बंगलों और पार्क की तरफ जाती थी। मैंने काफ़ी मंगवा ली और आहिस्ता आहिस्ता एक फोन करके पीने लगा। निस्फ घंटे बाद मुझे दूर सड़क पर पहाड़ी बंगलों की तरफ से मेजर कृष्ण अपने दोस्त के साथ आता दिखाई दिया। मैं इसी लम्हे का इंतजार कर रहा था। मैं आहिस्ता से उठा और ऊपर वाली मंजिल की बरामदे में पहुंच गया। मैं सीधा अपने कमरे की तरफ गया जो बरामदे के कोने पर था। मैं एक तरफ खड़ा हो गया। मौसमी सरमा के बायस अक्सर कमरे खाली पड़े थे, बरामदा भी खाली था। थोड़ी देर बाद मैं ईसाई लड़की और मेजर के हल्के हल्के कहकहे सुने। मैं दीवार से अलग होकर आहिस्ता आहिस्ता इन कमरे की तरफ बढ़ा। मशरूब की बोतल वाला लिफाफा मेरे बगल में था। मेजर कृष्ण अपनी दोस्त के साथ बरामदे में अपनी कमरे की तरफ आ रहा था। इसके करीब से गुजरते हुए मैं जानबूझकर इससे टकरा गया और मशरूब की बोतल बगल से छूट दी। लिफाफा बरामदे की फर्श पर गिरा और बोतल टूट गई। ओह आई एम सॉरी, मेजर माजरत का इजहार करते हुए झुका। मैंने लिफाफा में टूटी हुई बोतल बाहर निकाली। मैं उसे दिखाना चाहता था कि मशरूब की बोतल बड़ी कीमती थी। मैं मुस्कुरा कर कहा, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, डोंट वरी, मैं अभी मशरूब की नई बोतल मंगवाता हूँ। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, नेवर माइंड सर, दरअसल गलती मेरी थी। नहीं, ऐसा नहीं होगा, आपको मेरी तरफ से नई बोतल कबूल करनी होगी। प्लीज़ मेरे साथ नीचे बार में आए। रोजी, तुम कमरे में चलो। मैं भी यही चाहता था, ये मेरे मंसूबे का हिस्सा था। मैं मेजर के साथ नीचे बार रूम में आ गया। उसने मुझे मशरूब की नई बोतल खरीद कर दी तो मैंने वही मशरूब इस तरफ बढ़ाते हुए कहा, अब उसे मेरी तरफ से कबूल कीजिए क्योंकि मैं ड्रिंक नहीं करता। अरे, मेजर कृष्ण हैरान होकर बोला, तो फिर आप ये किस लिए ले जा रहे थे? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अपने एक दोस्त को तोहफा देने जा रहा था। मेरा नाम डॉक्टर रामा मूर्ति है। अरे, आप डॉक्टर हैं, मेडिसिन के डॉक्टर? जी हाँ, और आप? डॉक्टर, मैं मेजर केवल कृष्ण आर्टिलरी का मेजर हूँ। ये मेरे लिए एक खुश आइन खबर थी कि हिंदू जवान आर्टिलरी यानी तोपखाने का मेजर था। इसने मेरा आधा सफ़र आसान कर दिया था। वो मुझे ज़बरदस्ती अपने कमरे में ले गया। इसकी दोस्त रूजी सोफे पर नीम दराज एक रिसाला पढ़ रही थी। रूजी डियर, ये डॉक्टर है, डॉक्टर वर्मा मूर्ति, MBBS। रूजी ने मुस्कुराते हुए मुझसे हाथ मिलाया। मेजर कृष्ण से मशरूब की बोतल खोले और गिलास में अंडीलते हुए बोला, डॉक्टर, आप इतनी सर्दी में डलहौजी कैसे आ गए? हम तो हनीमून मनाने आए हैं। क्या आप भी मेरी तरफ देखकर इसने एक कहा लगाया, जी नहीं, मेरी अभी शादी नहीं हुई। माई, रूजी बोली, डॉक्टर मुझे इजाज़त दो, मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर और सुशील सी लड़की तलाश करूं। मैं मुस्कुरा कर रह गया। वो मेरे सामने सोफे पर बैठकर मशरूब पीने लगे। मैं उन्हें बताया कि मैं अमृतसर का रहने वाला हूँ और वही मेडिकल कॉलेज में पढ़ा हूँ। आजकल पठानकोट में प्रैक्टिस करता हूँ। बर्फ़ के मौसम में एक बार बर्फ़ देखने डलहौजी ज़रूर आता हूँ। आपके फ्रेंड कहाँ रहते हैं जिनके लिए आप ये मशरूब की बोतल ले जा रहे थे? मेजर ने पूछा। मैं ये बात भूल ही गया था, ज़रा सा टनका। फिर बोला, वो मल्होत्रा साहब है, कॉलेज में हमारे प्रोफेसर थे।
انہیں ان چیزوں کا بہت شوق ہے. آج وہ پٹھانکوٹ جا رہے تھے, اس لیے میں ان کا پسندیدہ تحفہ لے کر جا رہا تھا. لیکن خیر پارگیٹڈ میجر پروفیسر صاحب تو اس وقت پٹھانکوٹ پہنچ بھی چکے ہوں گے. میجر اب ہلکے ہلکے سرور میں تھا. میں نے اسے محتاط انداز میں خریدنا شروع کر دیا. اس نے وہی کچھ بتایا جو میں پٹھانکوٹ میں اس کے رشتہ دار لڑکی عروشی کی زبانی سن چکا تھا. پھر وہ میری طرف دیکھ کر بولا, ڈاکٹر کیا میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے میں کوئی ایسا میڈیکل سرٹیفکیٹ حاصل کر سکتا ہوں کہ پٹھانکوٹ کا کلائمیٹ مجھے سوٹ نہیں کرتا؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا, میجر صاحب ایسا ہو سکتا ہے, مگر اس کے لیے آپ کو اپنی یونٹ کے کسی ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ہوگا. میجر کرشن نے ناپسندیدگی کے انداز میں سر جھٹک کر کہا, مائی فٹ ہماری یونٹ کا کیپٹن ڈاکٹر بھی اس امراج کرنل کا دوست ہے. اوکے نو پرابلم. تو ناظرین آج کے لیے یہی کافی ہے. ملتے ہیں بہت جلد انشاءاللہ اگلے قصے کے ساتھ. آپ لوگوں کو ایک درخواست ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک ہمارے چینل اردو دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو اس کو سبسکرائب کریں. اپنے دوست اسد کو اجازت دیجیے. شکریہ. والسلام.